Hello students, a warm welcome to all in our new session. In this session, we are going to extend the discussion about business. As we all know, we all are new here. Here means in the field of commerce. So accordingly, relating to business, because commerce is mostly dealing with business, how to do business, how to handle business, okay, or how to start your business, in what form you can start your business, relating to that. So fundamentally, first of all, we have to go from the first part till the or gaining knowledge one by another, one by one. Okay, so first we have to go on fundamental things. Okay, as in our last classes we have already discussed and I explained you what is business, about business, where it came from, yes or no, business as a part of our economic activity. There are various ways of economic activity, what we have discussed in our last class, that we can go for a corporate job, or we can go for profession, or we can go for employment, or we can do business. Okay, so in our last class we have already discussed about profession, what is profession, what is the nature, and what are the basic requirements of profession. And along with that we have already discussed about employment, what we do in employment. So in both the cases, whether in a profession, in employment, okay, what we do in both the cases, we have to depend upon someone, definitely, yes or no. You can say in profession, in case of profession, what we have to follow the code of conduct, the instructions and everything laid down by the association. Okay, so profession, in the profession we must follow the code of conduct, yes or no, which is laid down by the association. There are various associations, there medical association, bar council, मतलब the advocates, ओके जो कि एडवोकेट का होता है, ठीक है कि नहीं, और टीचर्स का रहता है, और नहीं तो डिफरेंट जो है इंजीनियर्स का रहता है. हर किसी का एक एक एसोसिएशन रहता है. जैसे हमने समझा कि हर जगह पे क्या होता है, उनका जो एसोसिएशन, उनका मतलब उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको रिलेटेड वो लोग सारे रूल्स बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट. सो दे मस्ट क्लियर, दे आर बाई सेल्फ, ये अपने आप ही काम करते हैं अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, बट दे हैव टू वर्क बाई सम कॉन्स्ट्रेंट्स. कॉन्स्ट्रेंट मतलब कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उसके अंडर में ही उनको काम करना पड़ता है, उसके बाहर वो जाके काम नहीं कर सकते, है कि नहीं. तो ये भी आ गया नहीं, एक के अंडर में ही काम करता है, ठीक है. और बाकी जो है अपना एम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट they are also working under someone, नहीं, working under a boss, someone मतलब जिसको हम बोलते हैं बॉस, है कि नहीं, जो अपना जो हेड रहता है, इधर सुपीरियर ले लो, बॉस ले लो, मैनेजर ले लो, कोई भी वर्ड ले लो आप यूज कर लो, कहता है मतलब उसके अंडर ही आपको काम करना है. सो इन बोथ दी केसेस यू हैव टू वर्क अंडर someone, किसी के अंडर में आप काम करते हो, डेफिनेटली, है कि नहीं. बट इन केस ऑफ बिजनेस, that is you are not dependent to anyone. This is called you are independent. You are totally independent. You are not working under someone. Okay, means you are the sole owner, you are the boss, you are the servant, everything is you. Okay, that is the business. So as don't worry about that, in our today's class or in our subsequent classes we are going to discuss more about this business. Clear? ठीक है, तो ये हो गया अपना सिंपल डिस्कशन.
तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक सबसे पहले तो एक मतलब ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब कि हम ये बिजनेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? ठीक है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस का जो रहता है, एक सबसे पहले तो हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल थिंग्स। ओके, फंडामेंटल थिंग्स। फंडामेंटल थिंग्स मतलब क्या क्या आता है? देखो, जैसे कि वो जो फंडामेंटल थिंग्स में आता है, व्हाट इज द बिजनेस। ओके, फंडामेंटल थिंग्स में आता है बिजनेस, दैट इज द टॉपिक नंबर 1। वी गो थ्रू द मीनिंग and introduction and meaning. Okay, then we'll go for definition. Okay, I've already suggest you, I've already explained what is meaning and what is definition, है कि नहीं? Meaning and definition we can say in English में आप लोग पढ़े होगे, है कि नहीं? स्पीच पढ़े हो, स्पीच, है कि नहीं? स्पीच क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, है कि नहीं? डायरेक्ट स्पीच मतलब जो कि डायरेक्टली किसने किसको बोला, इनडायरेक्टली उसको दूसरे ने कैसे एक्सप्लेन किया। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में पूरा बेटर एग्जांपल दिया था, है कि नहीं, कि ए ले लो, बी ले लो और सी ले लो, है कि नहीं? ए ने बी से कुछ बोला, दैट इज कमिंग अंडर डायरेक्ट स्पीच। सो ए टू बी डायरेक्ट, क्लियर? तो ए ने बी को बोला, सी को नहीं बोला ऑब्वियसली। नाउ सी इज एक्सप्लेनिंग दिस थिंग टू डी, सी इज एक्सप्लेनिंग दिस थिंग टू बी, और बी इज एक्सप्लेनिंग दिस थिंग टू बी सी। ए ने बी को बोला, बी सी से बता रहा है कि मुझे ए ने ऐसा बोला, और नहीं तो सी फिर, ये तो चेन सिस्टम आपको मालूम है ना, मैं आपसे कुछ कहूंगा, वो आप जाके दूसरे को करेंगे, वो दूसरा तीसरे को कहेगा, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, है कि नहीं? तो जो पहला हुआ सबसे पहले 1 to 2 मतलब A to B, दैट इज डायरेक्ट। उसके बाद जो भी आता है, जो भी जिसको बोलता है, वो डायरेक्ट नहीं है, जो बोलता है वही डायरेक्ट है। इधर A ने बोला B को, दैट इज डायरेक्ट, बाकी जो भी होता है ऑल आर इनडायरेक्ट स्पीच, है कि नहीं? तो क्या आएगा? ये हो गया B to C और C to D और कैरी ऑन जब चलता रहता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। बस ये जो इनडायरेक्ट वाला है ना, इसी को हम बोलते हैं मीनिंग, है कि नहीं? मतलब उसको आप अपने तरीके से कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि ए ने बी को बोला कि आई विल स्लैप यू और आई विल गिव यू 1000 रुपीज, आई विल गिव यू 1000 रुपीज। ए ने बी को बोला कि आई विल गिव यू 1000 रुपीज, बस दैट्स इट, यही था, इतना ही सेंटेंस था, है कि नहीं? तो इसको हमने लिख दिया इन्वर्टेड डायरेक्ट स्पीच। ए ने बी को क्या बोला? ए टोल्ड टू बी दैट आई विल गिव यू 1000 रुपीज, दैट्स इट। बट अभी क्या होगा, इसमें थोड़ा मिर्ची मसाला सब ऐड करेंगे, मसाला, है कि नहीं? जो गरम मसाला, सादा मसाला, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मसाला। क्या होगा? बी सी को बोलेगा कि पता है ए ने मुझे क्या बोला? ए ने मुझे बोला कि वो मुझे 1000 रुपया देगा और उसके साथ साथ घुमाने भी लेके जाएगा। बस हो गया ना, कुछ ऐड कर लिया उसने। ये थोड़ी ना बोला था। ए ने क्या बोला? ए ने बोला आई विल गिव यू 1000 रुपीज, बट बी व्हाट डू? बी ने बोला कुछ ऐड कर दिया कि घुमाने लेके जाएगा। हाँ चलो, क्या बात, मतलब बढ़िया है, सी को लगा। अभी सी डी को एक्सप्लेन करेगा, पता है ए ने बी से क्या बोला? ए ने बी से बोला कि वो उसको 1000 रुपया देगा, घुमाने लेके जाएगा और उसका होमवर्क भी कर देगा। बाप रे, ये तो और जो ऐड कर दिया। फिर डी, है कि नहीं? फिर डी और किसी को बोलेगा, फिर ही को बोलेगा, है कि नहीं? ई एफ को बोलेगा। तो ये जो है ना, इसके बाद में जो भी ये चेन में आता है, ये सारे के सारे हम बोलते हैं मीनिंग। इसका मतलब क्या है? सिंपल वे में कोई मतलब जो भी जो बोले हैं वो सबको हम मिला के जब एक अपने समझदारी के लिए अपने हिसाब से जो एक मीनिंग, जो एक मतलब उसका जो एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मीनिंग। बाकी जो डेफिनेशन है, वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट मर्ज, ए का बी के साथ मर्ज नहीं कर सकते, जो कि है हमारे बिजनेस फील्ड में बहुत सारी। ये देखो, ये जो बिजनेस डेवलप हुआ है, ठीक है, बिजनेस बहुत पहले से होता था, बट थ्योरेटिकली नहीं था। मतलब सब लोग बिजनेस करते थे। आप अगर समझोगे कि जब मतलब टाटा बिरला वो टाइम पे जो बिजनेस करते थे, वो टाइम पे ये थोड़ी ना पढ़ाते थे, नहीं था, वो खुद लोग करते थे, अपने आप करते थे। बट वो टाइम पे क्या होता था कि आप उन लोगों ने देख देख के सीख लिया, है कि नहीं? वैसा रहता था। बट अभी क्या हो रहा है, इसमें हम लोग कैरियर बनाते हैं,
है कि नहीं? बिजनेस में हम कैरियर बनाते हैं। तो कैरियर बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? यू मस्ट हैव थ्योरेटिकल नॉलेज। वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज बनाने के लिए हम ये पढ़ाई करते हैं। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, हम जो ये जो बुक्स में जो पढ़ रहे हैं, ये किसने डेवलप किया? हमने थोड़ी ना डेवलप किया, हमने डेवलप नहीं किया, ये सबसे पहले डेवलप हो चुका है। तो किसने किया? डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ, हम जिसको बोलते हैं फादर्स, है कि नहीं? फादर ऑफ दिस टॉपिक, फादर ऑफ दिस, फादर ऑफ दिस, है कि नहीं? जैसे यू आर द फादर ऑफ, यू आर द पेरेंट, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ समवन फादर। क्लियर? आप बोलोगे कि ही इज द फादर ऑफ मिस्टर राम, ही इज द फादर ऑफ मिस्टर श्याम, जिसको बोलते हैं ना। जैसे ये अपने बिजनेस में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि कोई कोई अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डेवलप किए हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो जो है वो अभी हम नहीं देखेंगे, वो जो टॉपिक कौन क्या डेवलप किया वो हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो ये याद रख लो कि ये जो बिजनेस के जो सारे भी कॉन्सेप्ट हैं, उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, ये से वगैरह सब डेवलप्ड किया गया है बेस्ड अपॉन देयर ओन एक्सपीरियंस। बिकॉज जो भी ये सब डेवलप किए हैं वो सारे लोग कहीं ना कहीं काम करते थे, है कि नहीं? तो उन्होंने वो सब चीजों को झेला है, देखा है, समझा है कि? तो उसी के हिसाब से वो लोगों ने ये सारे चीजों को डेवलप किया है। ओके, आ रहा ना समझ में? तो इसके हिसाब से ही जो भी बोला उसको हम डायरेक्टली ही बोलेंगे, दैट इज डेफिनेशन। क्लियर? वी कैन से according to Mr. A, according to B, according to C, according to D. We cannot merge according to A and B. मिक्स में होता है। जैसे कि मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं, चलेगा, और हम दो जन मिलकर स्टेटमेंट, मैं और ए और एक टीचर मिलकर दोनों स्टेटमेंट, तो वहां पे लगेगा कि A एंड B से, दैट इज ओके। बट A अलग था, B अलग था, C अलग था, हम तीनों को एक साथ नहीं मिला सकते इन डेफिनेशन, बट इन मीनिंग वी कैन मर्ज, हम सबको मिला सकते हैं। इधर मतलब मीनिंग में हम नहीं लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू, वो वर्ड ये नहीं रहेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू अज। हमने जितना समझा है उसे हम लिख रहे हैं, दैट इज आवर मीनिंग। हमने जो समझा, जैसे कि ए ने बी को कुछ बोला, सी ने कुछ समझा, डी ने कुछ समझा, ई ने कुछ समझा, कोई कौन समझा, तो उसी को हम बोलते हैं, ये सारे को हम बोलते हैं मीनिंग, ठीक है। बट जो ए ने बी को जो बोला वो हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं डेफिनेशन। ओके, क्लियर? ये पूरा हो गया हिस्ट्री। देखो ये एक बार मैं कर चुका था, फिर भी आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं दोबारा ये कर लिया एग्जांपल, ठीक है। तो दैट इज द, बिकॉज ये उसका करने का एक रीजन है, क्योंकि मीनिंग डेफिनेशन आपको अपने जो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट बुक में आपको हर जगह पे, हर टॉपिक पे बार बार, 1000 बार दिखाई देगा, है कि नहीं? तो इसके हिसाब से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये एग्जाम्पल को अच्छे से याद रख लो, ठीक है। तो ये जो बिजनेस में हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे मीनिंग, उसका मीनिंग इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे द डेफिनेशन, डिफरेंट डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट आवर प्रोफेशनल्स एंड फोरफादर्स। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी मैंने बोल दिया है कि नहीं? कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं नेचर, फीचर, है कि नहीं? नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज, ओके, ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या क्या क्वालिटी है, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीजों को हम डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे द ऑब्जेक्टिव और पर्पस। ओके, द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस करते क्यों हैं, क्यों करते हैं? डेफिनेटली आपको पता है, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी में टू अर्न मनी, तो डेफिनेटली वी हैव टू अर्न मनी। बट उसके साथ, मनी अर्न करने के साथ और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, पर्पस और एम। ओके, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि एम, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे रेलेवेंस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। ओके, रेलेवेंस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, रेलेवेंस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। क्या इसका मतलब? इसका मतलब है कि नो डाउट आप बोलोगे कि सर हम प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट भी जा सकते हैं, हम बिजनेस क्यों करें? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, मतलब सॉरी, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ डूइंग बिजनेस एंड अर्निंग प्रॉफिट? क्योंकि देखो, आप एम्प्लॉयमेंट जाते हो,
आप किसके साथ मतलब किसके अंडर में काम करते हो? एक बिजनेसमैन के अंडर में, है कि नहीं? नो डाउट प्रोफेशन में आप अपने आप खुद काम करते हो, बट जो आप देखते हो, आप जो एम्प्लॉयमेंट, एक कंपनी, मैंने एक कंपनी शुरू किया, उसमें मैं अपने जैसे 1000 जन को काम दे सकता हूं, बट जो मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता हूं तब मैं क्या करता हूं? अपने खुद के लिए काम करता हूं कि नहीं? मैं थोड़ी ना किसी और के लिए कुछ हेल्प कर सकता, किसी और को थोड़ी ना काम दिलवा सकता। नो डाउट रेफरेंस हम देते हैं कि हाँ मैं ये कंपनी में हूं और ये जगह खाली है, ये आ जाओ, सर को बोल देंगे सर ये मेरा भाई है, दोस्त है, बहुत अच्छा काम करता है, इसको लिख दे, ये दिस इज अ पार्ट। बट कैन वी do or arrange earning for someone else? No, because we are depending upon someone. हम अपने बॉस के अंडर काम करते हैं, हम बोलेंगे, रेफर करेंगे कि सर इसको काम दे दो, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, हम नहीं कर सकते। बट इफ यू आर ए बिजनेसमैन, देन आप अपना मतलब बिजनेस में अपने आप तो एंगेज होते हो, आपके साथ साथ और बहुत सारे लोग भी एंगेज हो जाते हैं डिफरेंट काम करने के लिए, ठीक है? तो इसके लिए हम देखेंगे बहुत सारे हैं रेलेवेंस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्निंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबको अपना अपना सैलरी देना है कि नहीं? सभी को, जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो भी हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, अभी देखो जो बड़े बड़े कंपनी है, वो लोग वहां पे जो काम करते हैं, दो यू आर दी एम्प्लॉयड, है कि नहीं? यू आर दी एम्प्लॉइज, तो आपको सैलरी मिलता है कि नहीं? तो सैलरी कहां से आता है? ये प्रॉफिट से ही आता है। जो प्रॉफिट मिलता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है उसी से आपका सैलरी देता है कि नहीं? क्लियर? प्रॉफिट आपको तो मालूम है डेफिनेटली, आपको अभी क्लास चल रहा है मैथ का, है कि नहीं? प्रॉफिट लॉस चल रहा है कि नहीं? तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, है कि नहीं? तो समझो कि कंपनी को एक चीज बनाने के लिए 100 रुपया खर्चा आया, है कि नहीं? और उसको अगर वो 110 में बेचेगा तभी उसको जो 10 रुपया मिलेगा उससे वो क्या करेगा? अपना खर्चा सारा निकालेगा। क्योंकि सोचो ये जो 100 रुपए बनाने के लिए जो लोगों ने काम किया, जो भी हर किसी को वो ये 10 रुपए में से डिस्ट्रीब्यूट करेगा डेफिनेटली, है कि नहीं? दैट इज द प्रॉफिट। आ रहा है ना समझ में? तो इसी के लिए वी लर्न और वी गेट अंडरस्टैंड अबाउट द रेलेवेंस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, कि क्यों हमें प्रॉफिट अर्निंग करना क्यों इतना जरूरी है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दैट थिंग। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद और एक क्या है कि रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेस बिजनेस। हमने सोचा कि हाँ सर हम बिजनेस करेंगे, नो डाउट, बट ऐसा थोड़ी ना कोई भी, हम बोलेंगे रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेस बिजनेस, मतलब बिजनेस करोगे नो डाउट, बट बिजनेस अगर कोई नॉर्मल बिजनेस हो तो कोई फायदा नहीं है। बिजनेस मतलब अच्छा बिजनेस होना चाहिए, सक्सेसफुल बिजनेस होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अगर आप बिजनेस करोगे, सर मैं बिजनेस करना चाहता हूं, ठीक है करो, आप अपना पैसा लगा दिए, टाइम लगाए, सब लगाए, बट आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है कि नहीं? आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो फायदा क्या है? उससे बेहतर है कि आप कोई कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट ले लेते, कोई एक कंपनी में जाके एक मंथली डेफिनेटली सैलरी आता, आपको इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता, आप दिन के 8 घंटे काम करते हैं। बट बिजनेस में आप दिन के पूरा 24/7 काम करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वहां पे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई चलो मुझे आज ये हो रहा है, मैं काम पे नहीं जाता हूं, हाँ, और आज ये मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं करता हूं, नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस है आपका, है कि नहीं? एवरी डे यू हैव टू बी अटेंटिव, आपको सारे के सारे अटेंड करना है, नहीं तो आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके क्लाइंट सब आपको छोड़ के चले जाएंगे आपके कंपनी को, है कि नहीं? तो 8 घंटा काम करना, एम्प्लॉयमेंट में 8 घंटा काम करते हैं, यहाँ पे 24 घंटा काम करना पड़ा, वहां पे मंथली सैलरी मिलता है, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिला आपको, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है कि नहीं? और 2-3 साल के बाद आप हायर पोजीशन में गए, आपका सैलरी बढ़ा, आप डिफरेंट एसेट्स, वेल्थ सब खरीद ले, यहाँ पे आपका वेल्थ पूरा डाउन हो रहा है, क्योंकि आपने लॉस हो गया, आपने अपना घर बेच दिया, आपने अपना गाड़ी बेच दिया, आपने अपना सब चीज दिया, तो फायदा क्या मिला? कुछ फायदा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, if you want to do a business, then do it properly. You must be a successful business, you must do a successful business, otherwise there is no relevance. अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता है, अगर आप बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे, अगर आप बिजनेस में कुछ लॉस इनकर करोगे, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ डूइंग योर बिजनेस, दैट इज टोटली वेस्ट ऑफ योर मनी, वेस्ट ऑफ योर वेल्थ, मतलब प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा डेफिनेटली, वेस्ट ऑफ योर मनी, वेस्ट ऑफ योर वेल्थ, वेस्ट ऑफ योर टाइम, वेस्ट ऑफ योर एफर्ट, वेस्ट ऑफ योर रेस्ट, आप अपना तबियत भी खराब कर दो, वेस्ट ऑफ योर हेल्थ आल्सो, क्योंकि टेंशन रहेगा, ठीक है? क्लियर? तो इससे बचने के लिए क्या है?
कि यू मस्ट डू ए सक्सेस बिजनेस। तो कहते हैं ना, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ डूइंग ए सक्सेसफुल बिजनेस, कि आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना होगा सबसे पहले कि ये अगर मेरे पास है तो ही मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, अगर ये मेरे पास है तो मैं बिजनेस करूंगा, सक्सेसफुल बनूंगा, अगर ये चीजें मेरे पास नहीं है मैं बिजनेस नहीं करूंगा और फेलियर नहीं होऊंगा। क्योंकि अगर ये चीजों के विदाउट दिस थिंग इफ यू स्टार्ट योर बिजनेस देन डेफिनेटली यू हैव टू गेट व्हाट, नथिंग, डिस्ट्रक्शन आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको देखना पड़ेगा इन आवर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट और क्या है, नेक्स्ट है, ये तो हो गया रिक्विजिट सक्सेस बिजनेस। ये तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, आपके पास क्वालिटी है कि नहीं, क्वालिटीज ऑफ ए बिजनेसमैन, क्वालिटीज ऑफ ए बिजनेसमैन, क्वालिटीज ऑफ ए बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन के पास क्या क्या क्वालिटी सारे होने चाहिए जिससे कि आप अपना बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। दैट इज अनदर थिंग। रिक्विजिट इज डिफरेंट थिंग, क्वालिटी इज डिफरेंट थिंग। सी यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है कि नहीं। सोचो रिक्विजिट्स के लिए अगर मैं एग्जांपल लूं कि आपको बुलेट चलाने का मन कर रहा है और नहीं तो आपको एरोप्लेन चलाने का मन कर रहा है, ओके, you want to fly, okay, or you want to take off a aeroplane, or if you want to ride a bullet, उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए जरूरत है क्या, पैसा, सबसे मेन ना पैसा, ठीक नहीं। आप खरीद सकते हो, कोई भी खरीद सकता है, ऐसा कोई नहीं है। यू कैन, ए स्मॉल बॉय कैन ऑल्सो परचेज एनीथिंग दे वांट, सब्जेक्ट टू पैसा होना चाहिए। दैट इज रिक्विजिट, यू मस्ट हैव टू परचेज दोस थिंग्स, और रेंट में भी ले लो, चलो कोई बात नहीं, दैट इज रिक्विजिट में जाएगा। बट क्वालिटी, आपको 18 साल नहीं हुआ है, आप नहीं कर पाओगे। यू हैव रिक्विजिट्स, बट ऐसा भी होता है कि सब कुछ होने के बाद भी अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप लोग देखते हो बॉलीवुड में, है कि नहीं, बहुत सारे बाहर से आते हैं टैलेंटेड पर्सन जो जिनका कि कोई मतलब लिंकअप नहीं रहता है कि नहीं, फिर भी वो अच्छा ग्रो करते हैं बिकॉज दे हैव द क्वालिटीज। यस और नो, दे हैव द क्वालिटीज। रिक्विजिट क्या है उनके लिए, उनके लिए रिक्विजिट है यू मस्ट हैव द नॉलेज, यू मस्ट हैव एक्टिंग स्किल, यू मस्ट हैव दोज आर द स्किल्स व्हाट यू वांट। और है क्वालिटी है, आप विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, मतलब विदाउट एनी बैक सपोर्ट आप ऊपर जा सकते हो। और दूसरे साइड में क्या एग्जांपल आप देखोगे, अगर बड़े बड़े स्टार्स के जो बच्चे हैं वो भी फेल हो जाते हैं, क्यों, रिक्विजिट्स तो है उनके पास डेफिनेटली, है कि नहीं, रिक्विजिट्स है कि नहीं, बैक सपोर्ट है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है उनको, वो स्टार का बच्चा है, डेफिनेटली मिल जाएगा फिल्म। बट क्वालिटी नहीं है, एक फिल्म चलो एक भी कर लिया, फिर ऑडियंस पसंद नहीं करेंगे, फिर वो दूसरा तीसरा फिल्म नहीं बना पाएंगे। दैट इज क्वालिटी। आया ना समझ में, रिक्विजिट्स क्या है और क्वालिटीज क्या है। रिक्विजिट्स व्हाट इज नेसेसरी टू डू ए बिजनेस, बट टू गेट सक्सेसफुल यू मस्ट नीड सम क्वालिटीज। आप शुरू कर सकते हो विथ द रिक्वायरमेंट्स, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, बट यू मस्ट हैव सम क्वालिटीज टू सक्सीड। आपको सक्सेसफुल होने के लिए वो जो क्वालिटीज को आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। और नेक्स्ट है हम जो किए, और बाकी उसके बाद हम देखेंगे कि जो है हमारा जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, हम जिसको बोलते हैं क्या कि डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम देखेंगे बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट में जो कि है ये हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, आपके टॉपिक का नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। ओके, उसके अंदर हम ये सारे चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। एंड देन सब्सिक्वेंटली हम जो डिफरेंट चीजें हमने देखा था इन आवर लास्ट वीडियो कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे, सीखेंगे कि बिजनेस होता क्या है और उसको हम करने के लिए क्या क्या हमें क्वालिटी चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो खत्म होने के बाद फिर हम देखेंगे क्या, फिर हम देखेंगे कि कौन से टाइप के बिजनेस हम कर सकते हैं।
Okay, clear? Understand? Okay. So now let's see or discuss the first thing, that is meaning and introduction of business. Introduction and meaning of business. क्या है business actually? Okay. तो very simple, business means to employ yourself for doing a specific task, and you are the sole controller of yourself. You have to do whatever you want to get success पाने के लिए, होने के लिए आपके मन में जो है आप वो कर सकते हो. कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, कोई बॉस नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, आप अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो. है क्या? ठीक है. तो जैसे कि हमने देखा जो कि एक एम्प्लॉयमेंट में जो होता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है, तो वो जो होता है थ्री थिंग्स आर देयर. एक तो एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस. तो दोनों में आप लोग एक अंडर रहते हो, बट बिजनेस में आप अपने हिसाब से काम करते हो. यू आर द सोल कंट्रोल ऑफ योर एक्टिविटीज. यू आर द ओन बॉस ऑफ योर एक्टिविटीज. यू आर द ओन सोन सुपीरियर. यू आर द सुपरवाइजर. यू आर द सबऑर्डिनेट. मतलब हायर पोजीशन, लोअर पोजीशन सब आप ही आएंगे. ठीक है. तो बेसिकली हम बिजनेस में क्या लेते हैं कि करते क्या है हम, मतलब काम करेंगे, मतलब क्या करेंगे, डेफिनेटली कुछ तो काम करेंगे. तो क्या काम करेंगे कि टू प्रोड्यूस समथिंग एंड सेल इट, प्रोड्यूस समथिंग एंड सेल इट, और टू परचेज समथिंग एंड सेल इट. क्लियर? जो कि हमने, मतलब मैंने आपको बोला है. ठीक है. जो बिजनेसमैन होता है उनका देखो सिंपल फंडा क्या होता है. देखो ये मैंने ले लिया एक बिजनेसमैन. ठीक है. ये एक बिजनेसमैन है. क्लियर? इसने देखा कि मार्केट में एक चीज है जो कि है, ले लो क्या लेंगे कि ले लो कि मोबाइल्स ले लो. ओके. मार्केट में जो है मोबाइल फोन्स है. ठीक है. तो एक बिजनेसमैन ने देखा कि ये जो स्टेट कौन सा है, ये है स्टेट ओडिशा. ठीक है. ओडिशा में मोबाइल फोन्स, और मोबाइल फोन का एग्जांपल नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट अभी हो गया है. ठीक है. इसमें आपको इनडायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल आपको डायरेक्ट मिल जाता है. बट ले लो कोई गारमेंट का ले लो. गारमेंट मतलब ड्रेस मटेरियल. ओके. गारमेंट ओडिशा में आपको चाहिए. क्लियर? तो ये एक ने देखा कि एक जो आदमी है वो उधर बेच रहा है, वो चीजों को बेच रहा है. क्या कि ले लो एक मीटर के हिसाब से ले लो. ठीक है. एक मीटर के हिसाब से बेच रहा है 100 रुपया. एक मीटर 100 रुपीज. कोई भी एक कपड़ा ले लो. जस्ट सिंपल एग्जांपल हमने ले. ओडिशा में गारमेंट, ये ने एक बिजनेसमैन में देखा कि ओडिशा में गारमेंट जो बेच रहे हैं, जो डिफरेंट एक पर्टिकुलर टाइप का गारमेंट है, वो एक मीटर का मतलब उसका वैल्यू है 100 रुपीज. ओके. देन और क्या होता है कि वहां पे एक आदमी है, एक बिजनेसमैन है, वो भी एक, ठीक है, ले लो कि बी है. वो क्या करता है, ये चीज को डेफिनेटली 100 रुपीज में बेचता है. तो ये लोग सारे 100 रुपीज में खरीदते हैं. ओके. क्लियर? अभी ये जो बिजनेसमैन है इसका नाम है ए. इसने देखा कि ये इसको कितने में बेच रहा है, 100 रुपए में बेच रहा है. बी क्या कर रहा है, बी इसको खरीद के ला रहा है. कहां से? बी इसको खरीद के ला रहा है मुंबई से. आ रहा है समझ में? बी परचेज गारमेंट्स. B purchase garments from Mumbai and then sell it in Odisha at rupees 100 per meter. यहां पे लोग सारे सैटिस्फाइड बोले रहे. बिजनेसमैन जो ए ने देखा कि बी वहां से खरीद के लाके बेचता है 100 रुपया में. ठीक है. देन ए ने डिसाइड किया कि हाँ ये जो चीज है ना, ये तो मैं खुद बना सकता हूं, ये मैं खुद बना सकता हूं. ठीक है. सो ए ने डिसाइड किया आई विल प्रोड्यूस गारमेंट एंड सेल इट इन ओडिशा. क्लियर?
एट कितने में बेचेगा? एट ₹90 पर मीटर। आ रहा है समझ में? ए ने क्या डिसाइड किया? ए ने डिसाइड किया कि वो जो चीज है ये तो मैं खुद बना सकता हूं। इसने प्रोड्यूस किया है कि नहीं, और सोचा कि मैं 90 रुपए में बेचूंगा। तो सोचो अभी कौन किसके पास जाएगा? कस्टमर्स डेफिनेटली जो जिसको भी पता चलेगा कि 90 में मिल रहा है वो लोग इसी के पास जाएंगे, है कि नहीं? और जिसको पता नहीं चला वो 100 में लेंगे, और नहीं तो दोनों का क्वालिटी कंपेयर करेंगे, किसका क्वालिटी अच्छा है। चलो ले लो कि दोनों के क्वालिटी अच्छे हैं, दोनों के क्वालिटी बहुत अच्छे हैं, प्राइस में थोड़ा 10 रुपीज का डिफरेंस है, तो इसको इससे लोग ज्यादा ले रहे हैं। तो ये क्या करेगा? ये भी कुछ कम कर देगा, है कि नहीं? ये सोचो कि पहले 100 में बेचता था, अब ये कर दिया कि नहीं 100 नहीं, मैं अभी बेचूंगा, मैं भी 90 में बेचूंगा। ठीक है, ये बोला कि मैं भी 90 में बेचूंगा। अब ये बोला मैं 90 में बेच रहा था, अभी मैं इसको कर दूंगा 85। इसको हम बोलते हैं ना कंपटीशन। कंपटीशन मतलब देखो, ए सिंगल प्रोडक्ट, व्हाट इज कंपटीशन? सिंपल सी, इफ ए सिंगल प्रोडक्ट इज देयर, that is requirement single और common place। दोनों का प्लेस कॉमन है, क्या है? दोनों गारमेंट बेच रहे हैं, दोनों उड़ीसा में बेच रहे हैं, ठीक है? बाकी और क्या हो गया कि द एक्ट ऑफ वन इफेक्ट, the act of one affect the act of other। एक का काम दूसरे को काम को इफेक्ट करेगा, है कि नहीं? ये पहले 100 में बेचता था, इसने 90 कर दिया तो ये भी आ गया 90 पे। अब इसने 85 कर दिया तो ये भी क्या करेगा? ये भी आ जाएगा 82 में आ सकता है शायद। अभी 82 आने के बाद ये भी करेगा 82, 80। इसी को बोलते हैं हम कंपटीशन। मतलब अगर आप सारे मतलब जितने भी हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस में हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस में हैं और आप एक ही चीज को कर रहे हो अपने अपने तरीके से, तो इट इज अ कंपटीशन। लाइक कौन किसको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, किसको ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा, उसको हम बोलते हैं कंपटीशन, है कि नहीं? तो यहां पे हो गया क्या? कंपटीशन हो गया कि एक ही गारमेंट में, दोनों गारमेंट बिजनेस में है, दोनों उड़ीसा में ही काम कर रहे हैं, और एक अगर कुछ पैसा कम कर रहा है तो दूसरा भी कम करना जरूरी है। ओके, तो यहां पे अभी एक क्वेश्चन आ गया, ये प्रॉफिट वगैरह छोड़ दो, कि व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का काम क्या है, क्या काम करते हैं ये तो कोई किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली। तो सिंपली वी कैन से ए एंड बी आर डूइंग बिजनेस। तो इसमें आपको क्या समझ में आया? बिजनेस का मतलब सिंपल है, जैसे मैंने बोला कि आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो। क्या? कि आप कोई एक चीज प्रोड्यूस करोगे, बनाओगे, जैसे कि ए ने किया, प्रोड्यूस किया, उसको बेचा, और नहीं तो आप बना नहीं सकते, आप वो चीज को कहीं दूसरी जगह से खरीद के लाओगे और फिर उसको अपने जगह में बेचोगे। ओके, ये जो एक्टिविटी होता है इसको हम बोलते हैं बिजनेस। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, कंटिन्यूअस सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज बिजनेस। गुड्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? गुड्स का मतलब आपको मालूम है? गुड्स मतलब चीजें, प्रोडक्ट, सामान, है कि नहीं? जिसको हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वेदर इट इज रिलेटिंग टू आवर पर्सनल लाइफ और आवर कॉस्मेटिक आइटम ले लो, खाने पीने का आइटम ले लो, पहनने का आइटम ले लो, पढ़ने का आइटम ले लो, एंजॉयमेंट का आइटम ले लो, वो सारे चीजों को हम क्या बोलते हैं? गुड्स। वो सारे बेचते हैं। कौन बेचता है? सेलर बेचता है। खरीदता कौन है? बायर खरीदता है। तो जो सेलर है उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। ठीक है, तो कोई क्या बेचता है? कोई छोटा छोटा जो अपने आपके मतलब गली में जो वेजिटेबल्स बेचने के लिए आते हैं और जो चूड़ियां बेचने के लिए आते हैं और जो मतलब और भी कुछ भी आइटम बेचने के लिए आते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी बिजनेस है। वो अपने अपने तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। जिसके पास जो है, आप देखे होगे कोई कोई क्या करते हैं कि ये तो ले लो, ये ले लो, ये हो गया कि इन लोगों ने खुद प्रोड्यूस किया लाके बेचा,
और ऐसा भी होता है कि कोई कोई क्या कहता है, दूसरे से खरीद के लाके भी आपको बेचता है। आप अगर उनसे पूछोगे, ठीक है, आप अगर उन लोगों से बात करोगे, देन दे कैन एक्सप्लेन, नो आई डोंट प्रोड्यूस इट, ओके, ये मैं प्रोड्यूस नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं कि ये मैं उससे खरीद के लाके यहाँ पे बेचता हूं, कुछ प्रॉफिट, डेफिनेटली प्रॉफिट के लिए हम काम करते हैं, ठीक है। और कोई कोई बोलेगा कि नहीं, ये मैंने अपने मतलब अपने ही जगह पे बनाया है, लाके बेच रहा हूं, ठीक है। तो कोई कोई प्रोड्यूस करता है एज लाइक ए, एंड कोई कोई खरीद के लाके बेचता है एज लाइक बी, है कि नहीं। दोनों का काम है बिजनेस, एक है प्रोडक्शन में है, एक प्रोडक्शन में है, और दूसरा है क्या, ओनली ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, दोनों बिजनेस एक्टिविटी में ही आता है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ प्रोड्यूस करके बेच सकते हो, और नहीं तो आप कुछ खरीद के बेच सकते हो, उसको मॉडिफाई करके बेच सकते हो। तो ये काम अगर आप कंटिन्यूस बेसिस में करते हो, कंटिन्यूस बेसिस में, सब्जेक्ट टू कंटिन्यूस, एक बार अगर आप करके रख दिए तो यू आर नॉट कॉल्ड एज ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन आपको कब बुलाया जाएगा, जब आप ये चीजों को बार बार रेगुलरली करोगे, देन ओनली यू मे कॉल्ड एज ए बिजनेसमैन। बट एंड उसके बाद अगर आपको सक्सेस मिल गया, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो यू विल बी कॉल्ड एज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, है कि नहीं। एज लाइक यू, हम बोलते हैं ना कि ये स्टार्टअप बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर जिसका हम बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर मतलब जो अपना बिजनेस पहले शुरू किया फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज एंटरप्रेन्योर। और फिर क्या होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं, उनका डेवलपमेंट होता रहता है कि नहीं। डेवलपमेंट होने के बाद हम लोग उन लोग को क्या बोलते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर से वो हो गया बिजनेसमैन बोलते हैं, बिजनेसमैन सक्सेसफुल बिजनेसमैन बोलते हैं, बिजनेस टाइकून बोलते हैं, बिजनेस टाइकून, बिजनेस एम्बेसडर, है कि नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं ना टाटा, बिरला, है कि नहीं, इन लोगों का जैसे नाम लेते हैं, ये सारे पूरा बिजनेस में पूरा सक्सीड हो गए हैं, है कि नहीं। बट वो थोड़ी ना शुरू से ही ऊपर चले गए हैं, वो लोगों ने भी शुरू से धीरे धीरे शुरू किया था, ओके। तो कंटिन्यूस करना चाहिए, कंटिन्यूस करोगे तभी आप बिजनेसमैन करोगे, बोलोगे, है कि नहीं, क्लियर। सो बिजनेस मीन्स प्रोड्यूसिंग समथिंग, परचेजिंग समथिंग, सेलिंग, purchasing and selling in a continuous manner by producing or by purchasing, purchase something, sell something, or produce something, sell something in a continuous manner, that is called business, okay, clear। तो कंटिन्यूस बेसिस में हम बेचते हैं, किस लिए बेचते हैं, देयर इज ए सिंगल मोटो। हम जो बिजनेस करते हैं वो सिंपल एक सिंगल मोटो के लिए होता है, द सिंगल मोटो इज टू अर्न। व्हाट इज द मोटो, बिजनेसमैन का मोटो मतलब एम, ऑब्जेक्टिव। क्या होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना होता है एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव। वो कुछ भी करता है, ऑल ऑफ टू अर्न समथिंग, कुछ उसको चाहिए, कुछ एक प्रॉफिट चाहिए, जिसको कि लेके वो क्या करेगा, अपना बिजनेस को ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, है कि नहीं। आप उनके पास जो काम कर रहे हैं उन लोगों को सैलरी देगा, अपना बिजनेस और भी मतलब ग्रो, एक्सपांड करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जो कि बड़े बड़े कंपनी है उनका कितने सारे ब्रांचेस होते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में रहता है, इंडिया के बाहर भी रहता है। तो शुरू से थोड़ी ना उन लोगों ने ऐसा कर लिया, नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो वो स्टेप कैसे कंप्लीट होगा, ओनली बाय अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करोगे, उसी से आपका सारा का सारा काम होगा, धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, धीरे धीरे आप डेवलप करोगे, ओके, क्लियर, आ गया कि नहीं समझ में। सो वी कैन से इफ देन, अगर हम ये एग्जांपल आ गया ना समझ में आपको अच्छे से, तो अभी हम देख सकते हैं, अभी हम बोल सकते हैं कि बिजनेस में क्या है, कि बिजनेस मतलब टू डू ए स्पेसिफिक टास्क continuously, clear, to earn money, to earn profit. What is the task, the task is to sell product, services. आप कुछ चीजें बेच सकते हो और सर्विस भी बेच सकते हो। जैसे कि रिलायंस कंपनी है, अपना जियो कंपनी, जियो, वो क्या करता है, वो सर्विस बेचता है। सर्विस मतलब उसका जो है, जो नेटवर्क बेचता है वो, है कि नहीं, उसका जो इंटरनेट ले लो, और नहीं तो उसका जो मोबाइल नेटवर्क ले लो, वो सब, वो सारे चीजों को हमें बेचता है। वो थोड़ी ना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब जो दिखाई देता है, सर्विस दिखाई नहीं देता है, वी कैन फील, इनटेंजिबल होता है सर्विस, बट प्रोडक्ट टेंजिबल। तो आप कुछ भी करो,
आपने किसी एक कस्टमर को, आपके कस्टमर को आपने सेटिस्फाई कर लिया, आपने उसको जो चाहिए था उसको दे दिया, तो उसके बदले में वो आपको जो मांगेगा वो आपको दे सकता है। ठीक है, अगर आप एक चीज को खरीदने के लिए और बनाने के लिए 100 रुपया खर्चा हुआ, सोचो कि 100 रुपया आपको लगा टू प्रोड्यूस, ओके, और नहीं तो यू परचेज इट एट 95, परचेज किया आपने 95 में, उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें कुछ मॉडिफाई करोगे और कुछ करोगे, फिर आप उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे, है कि नहीं, फिर आप उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे, करने के बाद दैट इज सेल प्राइस, है कि नहीं, यही होता है सारे का सारा। 100 रुपीज ले लो, आप लगा कि मैं 10 रुपया प्रॉफिट चार्ज करूंगा, ये लगा 10 रुपया चार्ज करूंगा, तो उसका हो गया 110 और इसका हो गया 105, अभी हो गया कंपटीशन हो गया दोनों में 110 15 कंपटीशन, बस यही तो चलता रहता है। बट बिजनेसमैन इसी को हम बोलते हैं। तो वो जो हमने किया कि कोई प्रोड्यूस मतलब चीजों को भी बेच सकते हैं और सर्विसेज को भी हम बेच सकते हैं। ओके, क्लियर? सो अगर हम देखेंगे बिजनेस को अगर कुछ अच्छे तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है और आपको मैं अभी भी बोल रहा हूं कि माई ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस थिंग्स, और मेरे जो ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूं, द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू लर्न, टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। राइटिंग में कुछ नहीं है, राइटिंग एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में सारे के सारे हैं, है कि नहीं। तो आपको अगर और डिटेल्ड वे में जाना है तो आप क्या कर सकते हो, अपने बुक को रेफर कर सकते हो, बहुत बहुत वैरायटी वाले बुक रहते हैं, है कि नहीं। आप कोई भी बुक्स को रेफर कर सकते हो टू गेट क्लियर, गेट द सेंटेंस और टू गेट द वर्ड्स। बट द मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ माई क्लासेस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो राइटिंग में मैं नहीं करता मतलब इतना इतना सर, अगर मैं मीनिंग अभी लिखूंगा तो मीनिंग इतना तक आएगा, है कि नहीं, पूरा एक लाइन बाय लाइन लिखूंगा, थोड़ी ना इतना काम करना है, ठीक है। क्लास मतलब बस यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप अगर समझ में आ गया तो इट यू कैन क्रिएट योर ओन मीनिंग। एज वी नो मीनिंग का कोई फर्क नहीं होता है, आप अपना अपना मीनिंग खुद बना सकते हो। सिंपल वे में अगर हम बोलेंगे कि बिजनेस का मतलब क्या है, सिंपल अगर बोलेंगे, है कि नहीं, तो बिजनेस मीन्स टू प्रोड्यूस and sell, to produce and sell goods and services, produce and sell goods and services, और नहीं तो हम बोल सकते हैं to purchase and sell goods and services। आप परचेज करके, परचेज किए और प्रोड्यूस किए, कुछ भी कर सकते हो। देन doing the activity of purchasing and selling continuously कंटिन्यू होना चाहिए, एक बार करके अगर बंद कर दिया, यू आर नॉट कॉल्ड एज ए बिजनेसमैन। ओके, नेक्स्ट, द प्राइम एम इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, टू अर्न प्रॉफिट। बस प्रॉफिट के लिए हम काम करते हैं, है कि नहीं, बस और कुछ नहीं है। बट अभी अभी और भी ऐड हो गया है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। देन टू सेटिस्फाई योर कस्टमर्स with your quality product and services। ओके, सो बिजनेस का मतलब क्या है, टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विस, टू परचेज एंड सेल गुड्स एंड सर्विस, doing activity in a continuous manner. You must have aim, prime aim is to earn profit. Along with that you must have aim to satisfy your customers, so that if you satisfy your customer then only you can earn profit। प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेटिस्फाई करना जरूरी है कि नहीं। अगर सोचो कि मैंने आपको एक चीज बेचा, ठीक है, 100 रुपए में, आप वो चीज लेके गए, आपको बहुत बढ़िया लगा, यू आर गेट टोटल सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
देन अगली बार जब आओगे मैं बोलूंगा कि सर ये 110 हो गया, आप क्या बोलोगे? हाँ 110 हो गया, नहीं पिछली बार तो 100 रुपए में लिया था। आप मतलब थोड़ा बार्गेनिंग करोगे, फिर क्या बोले, हाँ चलो ठीक है दे दो, होगा सच होगा, है कि नहीं? बट अगर मैंने आपको जो चीज पहले बेचा वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, यू नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विथ माई प्रोडक्ट, देन आप आओगे नेक्स्ट टाइम 110 करना तो छोड़ो, मुझे 90 रुपीज में देखो, फ्री में देखो, मतलब बेचोगे तो भी तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या चाहिए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट। ओनली अर्निंग, मतलब टू अर्न प्रॉफिट यू हैव टू सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करोगे तभी अर्निंग कर पाओगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे अर्निंग नहीं कर पाओगे। सिंपल, द इक्वेशन इज वेरी सिंपल, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन satisfaction and profit. If you can satisfy, you can earn profit. If you dissatisfy, your profit is also down. Okay, clear? ठीक है, आ गया समझ में? तो that is the basic meaning of business. तो इसमें क्या क्या आता है अगर हम एग्जांपल लेंगे तो you can say the vegetable seller, the fruit seller, okay, the electronic item seller, the service providers like your television, okay, television means your mobile network, your internet, okay, hospital, institutions, clear? ये सारे जो क्या करते हैं अपना अपना बिजनेस करते हैं। to aim, the aim is to satisfy customer and by the way and to earn profit. okay, clear? आ गया समझ में? then ये होता है that is about the business of, sorry, the basic meaning of business. देन हम देखेंगे कोई डेफिनेशन इसमें क्या आता है, ये एक्स्ट्रा मैंने देखा है, ठीक है, और उसके साथ आपके बुक में जो है आप वो चीज को भी फॉलो कर सकते हो। ओके, क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि बिजनेस का, अपना बिजनेस का की डेफिनेशन क्या क्या है, मतलब हु कैन डिफाइन बिजनेस इन व्हाट वे। okay, so we have a lot of definitions given. okay, बहुत सारे definitions हमारे पास हैं जो कि different business authors ने, different business eminents और business experienced businessmen में, और जिनके पास उन लोगों उन चीजों का नॉलेज था उन लोगों ने दिया है। तो क्या है अगर हम देखेंगे, सबसे पहले, ठीक है, first one, if we say according to, we can say Urvik and Hunt, according to Urvik and Hunt, according to Urvik and Hunt, जैसे मैंने बोला ए एंड बी, दो मिलके, दो जन मिलके भी बोल सकते हैं, तो ये चीज को ले लो, ये दो जन मिलके बोले हैं, है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू उर्विक एंड हंट, बिजनेस इज एनी एंटरप्राइज, वी कैन से, तो एज लाइक वी कैन से डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन मतलब वो आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, जो दिया गया है वही आपको लिखना है। ओके, क्लियर? तो क्या अकॉर्डिंग टू उर्विक एंड हंट business is any enterprise, is any enterprise, ये जो एंटरप्राइज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? एंटरप्राइज मतलब हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि आपको पता है सोल ट्रेड, अकेले करना, ओके, पार्टनरशिप, और नहीं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट कंपनी, और नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो सारे हैं इसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज। तो ये सारे के सारे को हम बोलते हैं बिजनेस। सारे मतलब सभी कोई, हर कोई क्या करता है, वही बिजनेस ही कर रहा है और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है, ठीक है? सो बिजनेस इज एनी एंटरप्राइज, कोई भी एक एंटरप्राइज हो सकता है, विच मेक्स बनाता है, विच मेक्स, डिस्ट्रीब्यूट, विच बनाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है,
बनाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। देन मेक, डिस्ट्रीब्यूट और प्रोवाइड एनी आर्टिकल और सर्विस। डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है प्रोवाइड, प्रोवाइड एनी आर्टिकल, प्रोवाइड एनी आर्टिकल्स और सर्विसेज। आर्टिकल्स मतलब हम जिसको बोलते हैं गुड्स, है कि नहीं। आर्टिकल मतलब जिसको हम बोलते हैं गुड्स, क्लियर। तो इसमें बहुत सारे हैं, टैंजिबल, इंटैंजिबल रहता है, तो उसको कंबाइन हम बोलते हैं आर्टिकल, ओके क्लियर। आर्टिकल गुड्स मतलब जो कि दिखाई देता है, और ऐसे भी बहुत सारे गुड्स हैं, ठीक है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो आर्टिकल मतलब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वाज दैट, जिसको हम बोलते हैं कंबाइनली बोलते हैं आर्टिकल। वो हम देखेंगे बाद में आर्टिकल क्या है, वो आपको मैथमेटिक्स में आपको पता चलेगा प्रॉफिट लॉस पढ़ा के टाइम पे कि आर्टिकल क्या क्या, आर्टिकल में क्या क्या आता है, ठीक है। तो प्रोवाइड एनी आर्टिकल और सर्विसेज which the other member services which the other members of the community, other members of the community needs, okay, and able and willing to pay for it, and are able and willing to pay for it। आगे समझ में, देखो वेरी सिंपल। बिजनेस मीन्स एनी एंटरप्राइज, मैंने बोला कुछ भी आप कर सकते हो। यू कैन डू योर बिजनेस इन एनी फॉर्मेट। आप अकेले कर सकते हो, 3-4 जन मिलके कर सकते हो, और 100-200 जन मिलके कर सकते हो, ठीक है। तो एनी एंटरप्राइज विच, जिसमें क्या आता है, एनी एंटरप्राइज विच मेक, जैसे मैंने बोला प्रोड्यूस, और डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट खरीदोगे और प्रोड्यूस करोगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रोवाइड करोगे, बेचोगे। एनी आर्टिकल और सर्विस, आर्टिकल आता है गुड्स और सर्विस, विच अदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी नीड। ऑफ द कम्युनिटी मतलब जैसे कि मैंने दिया एग्जांपल ए और बी। ए को लगा कि बी तो पहले से करता था, ए को लगा कि हाँ यहाँ पे तो लोगों को गारमेंट चाहिए, वो बी लाके बेच रहा है तो मैं भी बेच सकता हूं। सो यू फाइंड दैट दे योर कम्युनिटी मतलब आपके एरिया के लोग, कम्युनिटी मतलब कोई मतलब रिलीजन का मतलब, कम्युनिटी मतलब योर एरिया, द पर्सन ऑफ योर एरिया वांट्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द मेंबर, यू कैन फाइंड इट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव डिसाइडेड कि ये मैं चीज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उन लोगों को थ्रू कंस्ट्रक्टिंग एंटरप्राइज। तो जो कम्युनिटी में आपके लोग हैं उनको चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, उसके साथ साथ और कुछ चाहिए, एंड मन रखो, ठीक है, एंड आर एबल एंड विलिंग टू पे फॉर इट। जो लोग देखो, ये इसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है। मतलब सक्सेसफुल कैसे बनोगे आप, कि आपको ये सारे चीजों को देखना पड़ेगा कि आपने लगा लिया पॉइंट 1 कि नीड, कस्टमर्स को चाहिए, यू फाइंड नीड, यस डेफिनेटली कस्टमर वांट दैट प्रोडक्ट, सो मैं बेचूंगा। दूसरा, एक चीज के हिसाब से आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप और चीजों को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। क्या कि दे आर मस्ट एबल टू बाय, करने का एबिलिटी हो। अगर आप गरीबों के बस्ती में जाके, उन लोगों को तो मतलब सब कुछ चाहिए, है कि नहीं, उन लोगों को सब कुछ चाहिए, थोड़ी ना आप वहां पे लेके बेच सकते हो, नहीं, क्योंकि उनके पास नीड है बट दे आर नॉट एबल टू बाय, वो लोग नहीं खरीद सकते, उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो है बट विलिंग टू बाय। एबल एंड विलिंग दो अलग चीज है। मेरे पास पैसा है बट मेरा मन नहीं है खरीदने के लिए, है कि नहीं, तो आई एम एबल बट आई हैव नो विलिंग, कि मुझे नहीं चाहिए, ये क्या करेंगे मैं, मेरे पास मुझे चाहिए, आई हैव विलिंग, मुझे ये चाहिए बट मेरे पास पैसा नहीं है। सो विलिंग, एबिलिटी, टू डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों को आपको देखना पड़ेगा। आप अगर एक मतलब ये तीनों को आपको देखना पड़ेगा फॉर ए बिजनेस, फॉर डूइंग ए बिजनेस, कि आप जो बेचना चाहते हो वो आपके कम्युनिटी की, मतलब जो भी कम्युनिटी है, आप मतलब अपने जगह में बेचो, कोई दूसरे सिटी में जाके बेचो, और नहीं तो कोई दूसरे स्टेट में जाके बेचो। आपको 3 चीज को मतलब देखना है कि दैट मस्ट बी नीडेड बाय द कस्टमर, बाय द मेंबर, मतलब कस्टमर उन लोगों को चाहिए होगा, ठीक है।
और क्या है, यू मस्ट बी एबल टू बाय, दे मस्ट बी एबल टू बाय, वो खरीद सकते हैं, उनके पास एबिलिटी हो, एबिलिटी इन द सेंस उनके पास पैसा हो, पैसे के साथ साथ उनके मन में चाह भी हो। एबिलिटी को हम लेंगे मनी, और विलिंग मतलब योर इंटरेस्ट। ठीक है, ये तीन चीज को होना चाहिए। तो ये तीन चीज अगर है, आप उन लोगों को कुछ बेच रहे हो कंटिन्यूस मैनर में, बाय डूइंग एनी एंटरप्राइज, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन गिवन बाय उर्विक एंड हंट। ओके, देख लो अच्छे से एक बार, क्योंकि डेफिनेशन को यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एज इट इज, यू कैन नॉट चेंज इट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। देन हम देखेंगे सेकेंड। आप जितने डेफिनेशन पढ़ोगे आपके लिए उतना अच्छा है, बट डेफिनेशन आपको याद रखना है, इसलिए आप एग्जाम में हमेशा कोई एक बेस्ट डेफिनेशन को ही याद रखो, उसको लिखो। ठीक है, सेकेंड अगर हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पीटरमैन, अकॉर्डिंग टू पीटरसन एंड प्लोमैन, according to Peterson and Plowman, पीटरसन एंड प्लोमैन, इन्होंने क्या बोला, इनके हिसाब से बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी, defined as an activity in which different persons, activity in which different persons मतलब A, B and the customers, they are all are different, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है कि नहीं, सब अलग अलग है। So we can say an activity in which different persons exchange something for value, persons exchange something for value, whether goods or service or for mutual gain and profit. Okay, for value, whether goods or service, whether goods or service for mutual gain और प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ओके, क्लियर। तो देखो ये भी डेफिनेशन वेरी सिंपल डेफिनेशन है, बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी, एक काम, डेफिनेटली इट्स अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, एज वी नो कंटिन्यूस एक्टिविटी, कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं। व्हाट एक्टिविटी, जहां पे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट मतलब द सेलर, बायर, देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स, देयर आर नंबर ऑफ बायर्स, जो सेलर अपने अपने बीच में बोलते हैं, वो बोलते हैं अपने आप को क्या बोलते हैं, कंपिटिटर्स, और जो बायर्स होते हैं उनको बोलते हैं क्लाइंट, और आपको जो मटेरियल्स देता है, आप जिससे खरीद लेकर आते हो उसको बोलते हैं सप्लायर। ये सारे डिफरेंट पर्सन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, हर कोई एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करता है। क्या एक्सचेंज करता है, समथिंग मतलब मे बी गुड्स, मे बी सर्विस, टैंजिबल इनटैंजिबल थिंग्स, फॉर वैल्यू मतलब कुछ पाने के लिए, वैल्यू मतलब कुछ पाना, वैल्यू मतलब फ्री में नहीं है, फ्री में नहीं कर रहा है कोई भी, वैल्यू मतलब कुछ कंसिडर है, कुछ भी तो डेफिनेटली चाहिए। तो क्या चाहिए, दैट इज वेदर गुड्स और सर्विस, जो बोला समथिंग मतलब गुड्स और सर्विस, क्यों, फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। म्यूचुअल गेन मतलब देखो मैंने प्रोड्यूस किया 100 रुपए में, मैंने उसको एक आदमी को बेच दिया, उसको 110 में, 10 रुपए मुझे मिला, वो जो लिया मुझे 110 में, वो अपने एरिया में जाके 120 में बेच रहा है, उसको भी मिला 10 रुपया, है कि नहीं। तो ऐसा ही म्यूचुअल
बेनिफिट, हम जो ये जो कर रहे हैं ना प्रोसेसिंग, 1 से 2, 2 से 3, ये जो मैंने आपको बोला कि प्रोड्यूसर के बाद होता है होलसेलर, फिर रिटेलर, है कि नहीं, ये जो सिस्टम रहता है, ये जो सिस्टम में हर कोई एक एक बिजनेस करता है टिल द फाइनल कंज्यूमर, हर कोई अपना अपना प्रॉफिट निकालने के लिए काम करता है कि नहीं? क्लियर? सो दैट इज डूइंग बिजनेस may be defined as any activity, clear, between different persons for exchange of something for mutual gain or profit. Okay, clear? हो गया ये दो डेफिनेशन? बस ठीक है ना? और एक डेफिनेशन है, इजी है और मतलब अच्छा भी है, उसको हम देखेंगे, ठीक है? क्या है? another definition given by L.H. Henry. according to L.H. Henry, according to L.H. Henry, business may be defined as a human activity. obviously human beings ही करते हैं, है कि नहीं? as a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling of goods. Through buying and selling of goods. ठीक है? क्या बोले एल.एच. हेंसी ने? बिजनेस में भी डिफाइन एज एन ह्यूमन एक्टिविटी. एज वी नो ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आता है इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, और बिजनेस एक्टिविटी इकोनॉमिक के अंदर आता है बिजनेस एक्टिविटी. तो बिजनेस इज ऑब्वियसली इज ए ह्यूमन एक्टिविटी. डायरेक्टेड मतलब क्या काम करते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्टिविटी मतलब आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू ईट, और आई एम गोइंग टू अर्निंग मनी. दिस इज द डायरेक्शन, आई एम गोइंग टू अर्निंग मनी. बिजनेस मतलब सो डायरेक्टेड. कहां पे डायरेक्टेड होता है? टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ. प्रोड्यूसिंग मतलब आप कुछ चीजों को प्रोड्यूस करो, जिसको मैंने बोला प्रोड्यूस खुद बना रहे हो. एक्वायर मतलब खरीद के लाए हो. वेल्थ मतलब द थिंग्स. द वेल्थ मतलब हम ले सकते हैं अपना गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है? थ्रू किस मतलब कैसे? थ्रू बाइंग एंड सेलिंग. मतलब हम जिसको हम प्रोड्यूस करेंगे, एक्वायर करेंगे वेल्थ को, और फिर उसको हम क्या करेंगे? खरीदेंगे, दूसरे से खरीदेंगे और दूसरे को बेचेंगे, है कि नहीं, ताकि हमें कुछ अर्निंग मिल पाए. ओके, क्लियर? आ रहा है समझ में? सो डेफिनेटली ये जो 3 डेफिनेशंस हैं गिवन बाय L.H. Henry, okay, and Orbeck and Hunt and Peterson and Plowman. These 3 definition very simple, easy. ये तीनों में से आपको तीनों याद रखना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है. ये तीनों को मिला के आप लिख सकते हो. तीनों को मतलब ये जो बस ये इन्वर्टेड कॉमा दे दिया मतलब डेफिनेशन, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया मतलब मीनिंग. तो इन्वर्टेड कॉमा अगर नहीं है तो उसमें आप कोई भी अगर ये सोचो कि मैं यहाँ पे और एक ऐड कर दूंगा कि गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहां पे मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं दे सकता, क्योंकि L.H. हेंसी ने ये नहीं बोला. L.H. हेंसी ने सर्विस वर्ड को ऐड नहीं किया था, तो आई कैन नॉट डू दिस, आई हैव टू डू इट. बट अगर मैंने यहां पे लिख दिया एंड सर्विस, तो मुझे यहां पे ये नाम हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं बोला. आ रहा ना समझ में? क्लियर? तो इस चीज को आप डेफिनेशन भी कर सकते हो, और नहीं तो एज ए मीनिंग आप सबको इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिख सकते हो. ठीक है? तो ये जो 3 डेफिनेशन है, आई सजेस्ट यू टू रिमेंबर ओनली 1 डेफिनेशन सो दैट यू कैन इंटरप्रेट, यू कैन राइट इट इन द एग्जाम. क्योंकि अगर एग्जाम में आप एक डेफिनेशन लिखते हो तो डेफिनेटली इज अ गुड थिंग,
but if you don't remember, so don't try to write your definition, because meaning इधर उधर हो सकता है, but definition इधर उधर होने से नहीं चलेगा. Okay, clear? आ गया समझ में? So that's it students. आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे. In our next class we will going to discuss about the characteristics, the objective, the qualities, the relevance of business. Okay, clear? So thank you for today's session and for your patience, and mostly for your time to watch our video. Thank you, and please do comment, as we must improve our video according to you. If you like it, if you don't like it, then you must have to do comment, so that accordingly we have to improve our video. And also if you have any doubt relating to this video, clear, you must welcome to do comments. Thank you, wish you, and good luck.